کہ عید قرباں کے موقع پر ڈویژنل سطح کے انتظامات مکمل۔ فیصلہ سمیت دیگر اضلاع میں آلائشیں ٹھکانے لگانے کے لیے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور میونسپل کمیٹیز فرائض انجام دیں گی۔ کمشنر عشرت علی کی جانب سے پریس بریفنگ۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی اور سی ای او کاشف اعوان نے بھی انتظامات پر روشنی ڈالی۔ عشرت علی نے فیصل آباد میں عید قرباں کے لیے کیے گئے انتظامات پر بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ عید کے تینوں ایام میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور میونسپل کمیٹیز کے عملے کی چھٹیاں منسوخ کی گئی ہیں۔ بہترین کاوشیں کی جا رہی ہیں۔ ایجنسی جو ہے وہ فیصل آباد سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہوگی۔ باقی جو ہے جیسے میونسپل کارپوریشن ہے، واسا ہے، ہمارا جو پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ہے وہ ان کے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے سول ڈیفنس، سوشل ورک، ان سب کو الرٹ رکھا ہوا اسی دن، اگلے 3 دن کے لیے، 3-4 دن کے لیے۔ سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کاشف اعوان نے بتایا کہ فیصل آباد شہر اور تحصیلوں میں تقریباً 20,000 ٹن آلائشیں اٹھائی جائیں گی۔ شہر میں مختلف مقامات پر آگاہی کیمپ لگ گئے ہیں۔ پہلے روز ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی 474 آپریشنل وہیکلز آپریشن میں حصہ لیں گی۔ دوسرے روز 439 جبکہ تیسرے روز 250 گاڑیاں فیلڈ میں ہوں گی۔ شکایات سننے کے لیے 12 لائنز ہوں گی۔ عملہ شکایت سنتے ہی چند منٹ میں نپٹائے گا۔ ہم نے اکارڈنگلی اپنا پلان جو ہے وہ بھی 169 یونین کونسل کے حساب سے ہی بنایا ہے، اور اس کے لیے 4,000 تقریباً ورکرز ہیں ہمارے جو ان فیلڈ ہوں گے۔ ہمارے جتنا بھی عملہ ہے ان کی چھٹیاں کینسل ہیں، ایم ڈی سے لے کے نیچے جو ہمارا ویسٹ ورکر ہے اس تک۔ کمپنی شکایات کے ازالے کے لیے 1139 پر متعدد لائنز فراہم کرے گی۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی نے کہا کہ تحصیلوں میں میونسپل کمیٹیاں آلائشوں کو مؤثر انداز میں ٹھکانے لگائیں گی۔ ڈی سی کمپلیکس میں بھی کنٹرول روم کام کرے گا، شکایات بھی سنی جائیں گی۔ کوئی ایڈیشنل اس دفعہ ریسورسز بھی دیے ہیں، اور بلکہ ہم نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان کو کوئی چیز کرائے پہ ہائر کرنی پڑتی ہے تو وہ بھی لے لیں۔ کوئی گاڑیاں چاہیے، ڈمپرز چاہیے، یا کوئی اور اس طرح کی مشینری وغیرہ اکوپمنٹ چاہیے تو وہ عید کے دنوں میں ہائر، ہمارا ایک ٹاسک ہے اس کو کمپلیٹ کریں۔ مقامی صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے افسران نے بتایا کہ آٹے کا بحران نہیں، تاہم چینی بھی سرکاری نرخوں پر مقرر کردہ پوائنٹس پر میسر ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے عید الاضحیٰ پر صفائی ستھرائی کی بھرپور تیاریاں جاری ہیں۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے محمد والا میں 1 کلومیٹر سے زائد طویل ڈرین تیار کر لی ہے۔ حکام کے مطابق ڈرین میں قربانی کے جانوروں کی آلائشیں ڈال کر چونا پھینکا جائے گا۔ ایم ڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے علماء کے وفد کے ساتھ ملاقات بھی کی۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عید الاضحیٰ کے موقع پر علماء اکرام کے ساتھ مل کر آگاہی مہم چلائے گی۔ چنیوٹ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر شہریوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے انتظامیہ متحرک ہے۔ صفائی کی صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے پلان تشکیل دے دیا گیا۔ کمپلین سیل اور کنٹرول روم قائم۔ آلائشیں اٹھانے کے لیے میونسپل کارپوریشن کے عملے میں نئے لوڈر رکشے، ہتھیلیاں، جیکٹس، ماسک اور دیگر سامان تقسیم کر دیا گیا۔ کمشنر محمد ریاض کے تحصیل میونسپل کارپوریشن دفتر میں تقریب منعقد ہوئی۔ عید الاضحیٰ پر صفائی کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کے لیے ایم سی عملہ میں قربانی کے جانوروں کی آلائشیں اٹھانے کے لیے نئے لوڈر رکشے، ہتھیلیاں، جیکٹ، ماسک اور شاپنگ بیگ تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر سی او ایم سی رانا محمد نواز، ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی سید ذوالفقار علی شاہ، ضلعی صدر پی ٹی آئی میاں شوکت علی تہیم، تاجران اور میڈیا نمائندگان، کورونا ٹائیگر فورس رضاکاروں دیگر بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر محمد ریاض نے بتایا کہ عید کے موقع پر صفائی ستھرائی کے حوالے سے شہر کو 9 سیکٹر میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ساری مشینری کو ہم نے ڈسپلے پہ لگایا ہوا ہے، اور جتنی بھی ریپیئر ریکوائرڈ تھی، جہاں جہاں پر بہتری کی ضرورت تھی، اس سب کو ابھی تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ عید کے حوالے سے ہمارا بڑا ایک کمپریہنسو جو پلان ہے سینیٹیشن کا اور کنٹینجنسی کا، وہ سارے پلان ہم نے فائنل کر لیے ہیں۔ ڈی سی کے مطابق ہر سیکٹر کا انچارج سینئر آفیسر ہوگا جس کے پاس تمام تر مشینری ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر محمد ریاض نے کہا کہ آلائشیں اکٹھی کرنے کے لیے شہر میں 34 کلیکشن پوائنٹس بنائے گئے ہیں، جبکہ ڈمپنگ سائٹس پر آلائشوں کو دفنانے کے لیے 3 عدد گہری اور لمبی ٹرنچیں بنائی گئی ہیں۔ ہم نے تمام جو ہمارا 300 کا سٹاف ہے میونسپل کارپوریشن کا، ان کے لیے نئے یونیفارمز بنائے ہیں تاکہ وہ فریش لک اور ڈسپلن کے ساتھ کام کر سکیں۔ انشاءاللہ اس دفعہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں بہت بہتری انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ عید قربان کے موقع پر بھی میونسپل کارپوریشن کے ورکرز اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھائیں گے۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ فصیح اللہ، سٹی 41 چنیوٹ۔ عید قرباں کی تیاریوں کی ہی بات کریں، ڈویژن بھر میں بڑی عید کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ نے سیکیورٹی پلان بھی تشکیل دے دیا ہے۔
जंग इंतजामिया ने ईद कुर्बान के लिए सफाई प्लान पर अमल की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर भट्टू ने तमाम अफसरान और सैनिटरी वर्कर्स की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं, जबकि नमाज ईद से कबल तमाम ईदगाहों को सैनिटाइज करने की हिदायत भी की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आलाइशें डालने के लिए प्लास्टिक बैग्स की तकसीम ईद से कबल हर सूरत मुकम्मल की जाए। सफाई के हवाले से हमने जंग को 4 जोन में तकसीम किया है और इसमें जो जंग सिटी के हवाले से ये 4 जोन में हमने सेपरेट जो है कि मशीनरी वो कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग मशीनरी जो है कि वो इनसफिशिएंट है, तो इसके लिए हमने मशीनरी जो है कि स्पेशल ली है। सीपीओ फैसलाबाद ने ईद के मौका पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस का ड्यूटी प्लान जारी कर दिया। 900 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। टाउन एसपीज अपने डिवीजन की सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे, जबकि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जिम्मेदार होंगे। ईद के तीनों रोज स्पेशल नाके लगाए जाएंगे। डीपीओ टोबा राना उमर फारूक की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में ईद उल अजहा पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया, जबकि पुलिस अफसरान को लॉकडाउन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई। ईद के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। जिला भर में 224 मसाजिद, 30 इमाम बारगाहें और 19 खुले मुकामात पर 576 पुलिस एहलकार ड्यूटियां अदा करेंगे। नमाजों के लिए अहम मुकामात पर वक्त फ्रिगेड और मेटल डिटेक्टर इस्तेमाल किया जाएगा। उधर सिटी 41 की खबर पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन एक्शन, शहर की सफाई सुथराई समेत मुगलिया दौर की मरकजी ईदगाह में सफाई का अमल शुरू कर दिया गया। हुकूमती एसओपीज पर अमल दरामद करवाते हुए मरकजी ईदगाह में 6 फुट फासले पर निशानात भी लगा दिए गए। और चिन्योट में ईद उल अजहा के लिए पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए 154 मुकामात पर नमाज ईद अदा की जाएगी, जहां 1000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकार फराइज सर अंजाम देंगे। अजहा के हवाले से चिन्योट पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। डीपीओ सैयद हसनैन हैदर ने कहा कि एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए 154 मकामात पर ईद की नमाज अदा की जाएगी। तमाम मकामात पर 1000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकारान तैनात होंगे। अहम इज्तिमात पर वॉक थ्रू गेट नस्ब किए जाएंगे। डीपीओ ने मजीद कहा कि ईद के आयाम में पुल दरियाए चनाब पर 300 से ज्यादा एहलकार तैनात किए गए हैं। कोरोना के पेश नजर हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे, जबकि वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए स्पेशल सिक्योरिटी प्लान तरतीब किया गया है। डीपीओ ने ईद उल अजहा पर अमनो अमान का कयाम हर सूरत यकीनी बनाने का अज़्म जाहिर किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ फसीउल्लाह, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में महकमा लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन 500 से ज्यादा मुलाजमीन हैं जो तनख्वाहों से महरूम है। हुकूमत के अहकामात के बावजूद महकमा ईद पर मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करने में नाकाम है। मुलाजमीन के घरों में ईद की खुशियां ठंडी पड़ने का खदशा है। आपको बताएं कि महकमा लोकल गवर्नमेंट के 500 से ज्यादा मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है। हुकूमत के अहकामात के बावजूद महकमा ईद पर मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करने में नाकाम है। सब्जी मंडी चिन्योट में सब्जियों की कीमतें शहरियों की पहुंच से दूर। मार्केट कमेटी के जारी करदा नरखनामे के मुताबिक आलू 75, जबकि सब्जी मंडी में 80 से 85 रुपए किलो में बिकने लगा। प्याज 35 से 40, टमाटर 90 से 100, अदरक 410 से 428 और लहसुन 170 से 180 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। ईद कुर्बां के मौका पर रश बढ़ा तो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की नाअहली का पोल खुलकर सामने आ गया। स्टेशन पर 4 में से 2 टिकट मशीनें खराब होने के बायस टिकट लेना मुहाल तो रही, सही कसर खवातीन काउंटर को बंद करके स्टेशन इंतजामिया ने खुद पूरी कर दी है। रिपोर्ट करेंगे अवैस अली। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर ईद कुर्बान के मौके पर बढ़ते हुए रश ने रेलवे इंतजामिया के नाकस इंतजामात का पोल खोल दिया। स्टेशन पर 4 में से 2 टिकट मशीनें खराब हो गईं, जिससे टिकट जारी करने का अमल सुस्त रवि का शिकार है। रही सही कसर फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया ने खवातीन और बुजुर्ग हजरात के लिए बनाया गया टिकट काउंटर खत्म करके पूरी कर दी है, जिसके बायस खवातीन मर्दों की लाइनों में लगकर टिकट लेने पर मजबूर हैं। बुजुर्ग भी टिकट लेने के लिए घंटों ख्वार होने पर मजबूर हैं। स्टेशन पर मौजूद खवातीन और बुजुर्ग हजरात का कहना है कि रेलवे इंतजामिया स्टेशन पर खवातीन और बुजुर्ग हजरात के लिए बनाए गए टिकट काउंटर को खोले ताकि आसानी से टिकट खरीद सकें। अगर लेडीज का काउंटर था तो वो लेडीज का ही होना चाहिए, क्योंकि लेडीज जेंट्स के साथ मिलके उधर टिकट लेती हैं, वो अच्छी बात नहीं। लेडीज का जो काउंटर था उसको ओपन किया जाए दोबारा से नए सिरे से और लेडीज वहीं से टिकट ले सकें। बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि पब्लिक के बेनिफिट के लिए उसको जल्दी खोल दिया जाए। रेलवे स्टेशन पर खराब टिकट मशीनें और खवातीन का बंद टिकट काउंटर महकमा रेलवे की मसाइल हल करने में अदम दिलचस्पी का सबूत है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अवैस अली, फैसलाबाद।
और झंग में परदेसियों की घरों में वापसी का सिलसिला शुरू। झंग से भगकर लिया जाने वाले मुसाफिर बड़ी तादाद में बस अड्डों पर पहुंच गए। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवाया जा रहा है, ताहम कोरोना इमरजेंसी के बायस मुसाफिरों की तादाद कम है। ईद कुर्बान के मौका पर परदेसियों की अपने घरों में वापसी का सिलसिला शुरू होने से बस अड्डों पर रश लग गया। झंग से भक्खर, लिया और दीगर अजला में जाने वाले अफराद बड़ी तादाद में बस अड्डे पर मौजूद हैं। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि लाहौर से झंग बड़ी तादाद में सवारियां आ रही हैं, ताहम कोरोना की वजह से ईद के मौके पर कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ है। सवारियां कम और गाड़ियां ज्यादा मौजूद हैं। जो लारी अड्डा झंग है, जनरल बस स्टैंड है, इसमें ज्यादा सवारी लिया और बकर की आमदोरफ्त है। बाकी शहरों के लिए सवारी बहुत कम है और एसओपी का हम पूरा ख्याल कर रहे हैं। लारी अड्डे में ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से सवारियों को पाबंद बनाया गया है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। और नाजरीन, ईद की खुशियां तो अपनों के संग ही होती हैं। सनती शहर से परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी है। कोरोना एसओपीज और ओवरलोडिंग की शिकायत भी आने लगी हैं। सेक्रेटरी आरटीए ने कई गाड़ियां बंद कर दी। हफ्ते के रोज ईद कुर्बान मजहबी जोशो खरोश से मनाई जाएगी। इस त्यौहार को मनाने के लिए परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी है। रश बढ़ा तो साथ कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी भी शुरू हो गई। मुसाफिर गाड़ियों में ओवरलोडिंग की शिकायत सामने आने लगी। इस पर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जमीरुल हसन ने कार्रवाई करते हुए कई गाड़ियां बंद कर दी। जमीरुल हसन ने बताया खिलाफ वर्जी पर 4 रोज में लाखों रुपए जुर्माने आयद किया गया है। किरायों के हवाले से भी गाड़ियों की डेली बेसिस पे चेकिंग हो रही है, जिसमें रूटीन में 10 से 15 गाड़ियां जो हैं वो बंद हो रही हैं और 30 से 35 कभी 40 हज़ार रुपया जुर्माना जो है वो इनको ऑन एवरेज जो है वो डेली बेसिस पे अब कर रहे हैं। आज भी हमने जो है वो 20 गाड़ियां अभी तक बंद की हैं और 55,000 रुपया जुर्माना आज हमने किया है ओवर चार्जिंग पर या ओवरलोडिंग पर या एसओपीज की खिलाफ वर्जी। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी आरटीए जमीरुल हसन ने जनरल बस स्टैंड पर कई ट्रांसपोर्टर्स को वार्निंग नोटिस जारी किए। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर राना हबीबुल्ला भी हमरा थे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और ईद के मौका पर फैसलाबादियों के लिए सीपीओ की जानिब से अच्छी खबर है। सीपीओ की आज से ईद के तीनों दिन तक ट्रैफिक चालान ना करने की हिदायत। सीपीओ ने इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस को अहकाम जारी कर दिए हैं। शहरियों को भी ये पैगाम दिया गया है कि शहरी पुरअमन तरीके से ईद मनाएं। अमन व अमान की सूरत हाल हर सूरत बरकरार रखी जाएगी। एक अच्छी खबर किसानों के लिए है। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने माहिरीन ने खेत से टिड्डी दल को भगाने के लिए सोलर सिस्टम से मुंसलिक घंटी मुतारिफ करवा दी है, जिसके शोर से 160 फुट के दायरे में मौजूद दुश्मन मकड़ी फरार होने पर मजबूर हो जाएगी। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखिए। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने टिड्डी दल के हमलों का खतरा टालने के लिए सोलर सिस्टम से मुंसलिक घंटी मुतारिफ करवा दी, जो ढोल की तरह शोर मचाकर टिड्डी दल को फसलों पर बैठने से रोकने में मददगार साबित होगी। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ का कहना था कि हुकूमत के साथ मिलकर टिड्डी दल के तदारुक के लिए काम कर रहे हैं। इससे कबल यूनिवर्सिटी इंजीनियर्स ने टिड्डी दल पर मौसर स्प्रे के लिए 3-in-1 स्प्रे मशीन भी मुतारिफ करवाई थी। अब सोलराइज्ड घंटी से भी टिड्डी दल को फसल पर बैठने से भगाने में मदद मिलेगी। लोग उस वक्त ढोल बजाया करते थे, कोई टीन बजाते थे, यानी नॉइस पैदा करना है। तो ये हमने सोलर सिस्टम से ये चीज़ बनाई है हमारे माहिरीन ने कि ये बेल जो है जब ये रखेंगे डिवाइस जो है किसी भी फील्ड में, तो 160 फुट तक इसकी आवाज़ जाती है और बहुत बड़ा शोर होता है। तो जैसे ढोल बजाने की बजाय ये ही रख दें तो ये ऑटोमेटिक चलती रहेगी, सोलर सिस्टम से चलती है। कोई इस पर कोई ऐसी कॉस्ट नहीं आ रही। शोभा एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग के चेयरमैन डॉक्टर अंजुम मुनीर ने खेत से टिड्डी दल को भगाने के लिए सोलर सिस्टम से मुंसलिक घंटी मुतारिफ करवाई है। सोलर घंटी के शोर से 160 फुट के दायरे में मौजूद दुश्मन मकड़ी फरार होने पर मजबूर हो जाएगी। क्रैंक शाफ्ट के साथ हम रोटरी मोशन में देते हैं, तो रोटरी मोशन के साथ क्या होता है कि जो उसकी बेल का लीवर हो जाता है। तो फिर ये हमारा तकरीबन कल हमने इसको नॉइज मीटर के साथ चेक भी किया है और इसके काफ़ी साउंड हैं, जैसे ढोल की आवाज़ का मतबादल हमने ये तैयार की है ताकि जो टिड्डी दल के हमले को रोका जा सके। वाइस चांसलर ऑफिस के बिलमुकाबिल लॉन में सोलर घंटी को तजर्बाती जायजा के लिए इंस्टॉल किया गया है। एक सोलराइज्ड यूनिट 10 से 12 हजार रुपए में तैयार होगा। सोलर घंटी के लिए 12 वोल्ट की सोलर प्लेट के साथ 6 एम्पेयर की मोटर इस्तेमाल की गई है, जिसके साथ घंटी को मुंसलिक किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद।
तफ्तीशी अफसरान की जानिब से इंसाफ में ताखीर की बड़ी वजह 6,562 चालान अदालतों में जमा करवाने के बजाय ज़ाती तहवील में रख लिए गए। पुलिस रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में बड़ी तादाद में रोड सर्टिफिकेट इल्तवा का शिकार होने पर SSP इन्वेस्टिगेशन ने तफ्तीशी अफसरान को वार्निंग जारी कर दी है। शहरियों को इंसाफ मिलने में ताखीर की बड़ी वजह तफ्तीशी अफसरान की गफलत और नाअहली साबित हुई है। दर्ज होने वाले मुकदमात में से 6,526 मुकदमात के चालान तफ्तीशी अफसरान ने अदालत में जमा करवाने की बजाय जाती तहवील में रख लिए हैं, जिसकी वजह से मुकदमात की समाअत ही शुरू नहीं हो सकी। इस सूरत हाल का इंकशाफ इस वक्त हुआ जब पुलिस रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में इन मुकदमात के रोड सर्टिफिकेट्स का इल्तवा सामने आया। सबसे ज्यादा रोड सर्टिफिकेट्स मदीना डिवीजन के ज़ेरे इल्तवा हैं। साइलिन मुकदमा दर्ज करवाने के बाद इंसाफ के लिए ख्वार हो रहे हैं, मगर तफ्तीशी अफसरान के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। SSP इन्वेस्टिगेशन ने इस सूरत हाल पर तफ्तीशी अफसरान को वार्निंग लेटर जारी करते हुए कहा कि उनका ये अमल बददयानती के मुतरादिफ है, जिसकी वजह से साइलिन इंसाफ के लिए दरबदर हो रहे हैं। उन्होंने टाउन SPs को हिदायत की कि फौरी तौर पर रोड पेंडेंसी क्लियर करवा कर रिपोर्ट भिजवाई जाए। तफ्तीशी अफसरान की मामूली सी गफलत ने साइलिन को इंसाफ से कई साल दूर कर दिया है। इस सूरत हाल के ज़िम्मेदारान के एहतसाब की अशद जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की मंजूरी के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के ऑनलाइन इम्तिहानात के ऐलान। झंग की तालिबात को परेशानी का सामना। दूर दराज के इलाकों में ताल्लुक रखने वाले तालिबात इंटरनेट और कंप्यूटर सिस्टम से महरूम होने के बायस कॉलेजेस के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की मंजूरी के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने ऑनलाइन इम्तिहानात का ऐलान कर दिया, जिसका आगाज 5 अगस्त से किया जाएगा। ऐलान के बाद बुनियादी मालूमात की अदम फराहमी के बायस तालिबात को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि खुसूसी तौर पर दूर दराज के इलाकों से ताल्लुक रखने वाली तालिबात इंटरनेट और कंप्यूटर सिस्टम से महरूम हैं। तालिबात इम्तिहानात में नाकामी के खदशे के बायस कॉलेज के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। ये ख्याल है कि ऑनलाइन एग्जाम्स जो हैं वो हायर एजुकेशन की एक नाकाम कोशिश है। पहली बात तो ये है कि हर घर में जो है कंप्यूटर की सहूलत मौजूद नहीं होती और फिर बच्चों को कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, तो कैसे बच्चे ऑनलाइन एग्जाम्स दे सकते हैं। कंप्यूटर से तो इम्तिहानात मुमकिन नहीं है। कंप्यूटर के साथ साथ बिजली, इंटरनेट और UPS का होना भी ज़रूरी है। ये कोशिश मेरे ख्याल में सिर्फ एक फ्लॉप ड्रामा है और इससे बेहतर नतीजे सामने नहीं आ सकेंगे। माहिरीन तालीम ने ऑनलाइन इम्तिहानात बारे यूनिवर्सिटी पॉलिसी को नाकाफी करार दिया है। प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन के चेयरमैन आसिफ अली शाहिद का कहना था कि एक प्रोग्राम के दोहरे इम्तिहानात की पॉलिसी पेश की गई है, जो किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। ये हुकूमत की एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। ऑनलाइन एजुकेशन का तजर्बा उस सूरत में कामयाब हो सकता है जब हर फैमिली में लैपटॉप और डेस्कटॉप की सहूलत मौजूद हो, उसके बाद इंटरनेट फैसिलिटी और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी या UPS बैकअप पे हो। ऐसा नहीं है और ना ही बच्चों को ट्रेनिंग की गई है और ये हंगामी तौर पे एग्ज़ाम लेना, मैं ये समझता हूँ उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तालिबात की जानिब से मुतालबा किया गया है कि यूनिवर्सिटी हुकाम इम्तिहानात के हवाले से जामे और वाज़ेह पॉलिसी मुरत्तिब करें ताकि उनका तालीमी साल मुतासिर होने से बच सके। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग। सूबाई वजीर एक्साइज हाफिज मुमताज की सीनियर नायब सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स शबीर पाशा के घर आमद। सियासी समाजी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। एक्साइज हाफिज मुमताज सीनियर नायब सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स शबीर पाशा के घर पहुंचे। तकरीब में हाफिज मुमताज ने कौम को ईद की खुशियों की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुस्तहकम है, अपोजिशन में कोई भी लीड करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक भी बंदा इनको लीड करने के लिए इन दोनों में से कोई नहीं तैयार। वो कह रहा है कि शबाशीर साहब लीड करेंगे, वो कह रहे हैं कि नहीं जी ये यंगस्टर है बुलावल, ये हमें लीड करेगा। यहाँ पे कोई चूरन बेचने के लिए कोई चीज इनके पास है ही कोई नहीं कि जो बताएंगे तो आवाम को घरों से निकालेंगे। एक्साइज मिनिस्टर ने कहा कि अफवाहों का जल्द खात्मा हो जाएगा। तारीख में पहली मर्तबा टैक्स फ्री बजट पेश किया गया। आवाम को अब रिलीफ नजर आ रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के या अदर इंडस्ट्री के वो सारे के सारे क्लियर किए गए ताकि देखें ना, वही हम दे सकते हैं डेवलपमेंट साइज जो रेवेन्यू साइज है, उसी के मुताबिक मुल्क को लेके हमने चलना है ना। जो अपने एक्सपेंडिचर्स हैं उसको कंट्रोल में लेके तो हमने मुल्क को तरक्की की तरफ। मुलाकात में MPA शफीक गुज्जर भी मौजूद थे। मेजबान शबीर पाशा ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मैं आने वाले मेहमानों का, मिनिस्टर साहब का, हाफिज मुमताज साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौका पर शुरका की जानिब से कोरोना वायरस से निजात के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। चिन्योट में मुसाफिर गाड़ियों में नस्ब गैस सिलेंडर मौत की अलामत बन गए हैं। कई हादसात रोमनुमा होने के बावजूद जिला इंतजामिया ने सबक नहीं सीखा।
चनियोट इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस मुसाफिर गाड़ियों में नस्ब गैस सिलेंडर हादसात में इजाफे का सबब बन रहे हैं। एक शहर से दूसरे शहर को जाने वाली ट्रांसपोर्ट में नस्ब गैर मयारी सिलेंडर के बायस मुसाफिर गैर महफूज सफर करने पर मजबूर हैं। गाड़ियों में ड्राइवरों ने जो है ना सिलेंडर लगा रखे हैं जो कि गैर कानूनी है। अक्सर जो है कई जगह पे हादसात रूनुमा हुए हैं और जिंदा जल जाते हैं लोग जिनकी शिनाख्त भी नहीं हो सकती। मुसाफिरों का कहना था गैस सिलेंडर्स के चेक एंड बैलेंस का कोई पैमाना नहीं। ट्रांसपोर्टर मुबैना तौर पर शहरियों की जानों से खेल रहे हैं। ताहम सेक्रेटरी RTA और ट्रैफिक पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों में मौत बांटने वाली इन मुसाफिर गाड़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। मेरी दरख्वास्त है इंतजामिया से कि वो इनको हटाए और ट्रैफिक पुलिस जो है ना इन पे जो है मुकदमात करे। शहरियों ने गाड़ियों में नस्ब गैस सिलेंडर हटाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबिर मुनीर, सिटी 41 चनियोट। पंजाब हुकूमत का निजी स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन और तमाम मालूमात ऑनलाइन करने का फैसला। CEOs एजुकेशन को पहले से रजिस्टर्ड तमाम स्कूल्स का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने का हुक्म दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट एजुकेशन प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से पोर्टल बना लिया है। अब निजी स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन समेत तमाम मालूमात भी ऑनलाइन मैसर होंगी। पंजाब हुकूमत ने निजी स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का फैसला किया है। तमाम निजी स्कूल्स की मालूमात भी ऑनलाइन रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई जाएंगी। CEOs एजुकेशन को पहले से रजिस्टर्ड तमाम स्कूल्स का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने का हुक्म दिया गया है। फैसलाबाद शहर और गिरदोनवा में सुरमई बादलों का राज रहा। बादल बरसने से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। हल्के बादल छाने से मौसम सुहाना हुआ, मगर सूरज ने भी अपनी पूरी आबोताब दिखाई। इनके आगाज में ही बादल शहरों गिरदोनवा में गरजे, थोड़े बरसे और ऐसे रुखसत हुए कि कभी बादल आए ही नहीं थे। फिर सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। दोपहर हुई तो सूरज फिर से छुट्टी पर चला गया। सरमई बादल गरजे और हवा के झोंकों के साथ बरसे, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी से सताई सनफे नाजुक ने सुख का सांस और ईद के दिन भी बारिश की दुआ की। अल्लाह का शुक्र है आज तो मौसम अच्छा हो गया है, लेकिन दुआ यही है कि ईद के दिनों में भी मौसम अच्छा गुजरे ताकि हम ईद भी अच्छे दिनों से गुजार सकें। आज मौसम बहुत अच्छा हो गया फैसलाबाद में। पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अब बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया फैसलाबाद का, और जो गर्मी का जोर था वो टूट गया। चंद मिलीमीटर बारिश के बाद सूरज मियां फिर लौट आए, मगर गर्मी के ताबड़तोड़ हमले मानद पड़ गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में भी बारिश की नवीद सुनाई है। फिल वक्त इतना ही।